تو جو لوگ زنا دیکھتے ہوں گے وہ کہاں تک طاقتور ہے ذرا یہ بتائیں، جس جہنم میں پہاڑ پگھل جاتا۔ یہ کوئی ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ آج آپ کو لگتا ہے سب چیزیں بڑی ایزی ہے، بہت آسان ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں۔ جس آسان، اگر یہ آسان ہوتا تو بھائی جن جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ راتوں کو کیوں روتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے، چہرے پہ نشان تھے آنسوؤں کے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات رات بھر روتے تھے۔ مولا مشکل کشا مولائے کائنات کے تو رونے کی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے کہ کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ماں کیسے روتے ہیں، ہم نے مولائے کائنات کو آخرت یاد کر کے ایسے روتے دیکھا۔ کسی کہنے والے نے یہاں تک بیان کیا اگر کسی کو سانپ ڈس دے، سانپ ڈنک مار دے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپ کے روتا ہے اس سے زیادہ تڑپ کر ہم نے مولائے کائنات کو روتے دیکھا ہے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی گزارش پر اللہ سے کہا کہ مولا یہ مرے ہوئے جو اوندھے پڑے ہیں یہ کیوں پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا رات کے وقت تو پوچھنا تو وہ بتائیں گے۔ رات کو پوچھا تو آواز آئی کہ ہمارے اندر دو گناہ تھے، نمبر ایک ہم دنیا سے محبت کرتے، یعنی اللہ کو بھول گئے تھے، اور اللہ کو بھولنے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بھول جانے سے بھی محبت ہے، لوگوں کو بھول گئے اللہ کو۔ بیٹا تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے، بہویں تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے، دکان تو یاد ہے، دکان دینے والا اللہ یاد نہیں۔ کیا ظلم ہے، کیا نیرنگیاں ہے۔ تو کام دنیا دار تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے۔ اور نمبر دو، ہم فاسق اور گنہگاروں کی پیروی کرتے تھے۔ یہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود، فاسق اور گنہگاروں کی پیروی، مجرموں کی پیروی۔ مطلب کیا؟ آج جو تم ڈیمیج پینٹ پہن رہے ہو یہ کسی شریف کا طریقہ ہے؟ کسی شریف نے کبھی ڈیمیج پینٹ پہنی ہے؟ پھٹی ہوئی پینٹ کس نے پہنا؟ دکان نچنیوں نے پہنا۔ وہ فاسق نہیں ہے، وہ فاسق نہیں ہے، بتائیں تو صحیح ہے۔ یہ فاسقوں کی پیروی کا انجام ہے۔ ہم فاسقوں کی پیروی کر، شادیوں میں دیکھ لیجئے جو دیندار بننے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کے گھروں میں بھی ڈی جے بج رہا ہے۔ دینداری کس چیز کا؟ صرف مسجد کے متولی ہونا ہی دینداری نہیں ہے۔ ابو جہل کعبے کا متولی بنا بیٹھا تھا، قدرت نے کیا انجام دکھایا؟ متولی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہاں، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی، اچھی ٹوپیاں اچھی پہن لی، داڑھی کے تراش خراش اچھے ہو گئے، باتیں ہماری ولیوں جیسی ہو گئی، لیکن ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پہ ڈھول برابر بج رہا۔ کہا مولانا عورتیں نہیں مانتی۔ میں نے کہا اچھا، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جس کو دو تماچے مار سکتا ہے، حرام کام کرنے پہ اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا؟ اپنے نفس کے لیے مار تک سکتے ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے ان کو گناہ سے روک نہیں سکتے؟ غور کیجئے، توجہ، پتا چلا کہ ہم خود ہی دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور ہم خود ہی فاسقوں کی پیروی پہ راضی ہیں۔ اللہ کے بندو، انہوں نے کہا ہم فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہا یہ تباہ کر دیے گئے، برباد کر۔ فاسقوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ گانے سننا کیا ہے؟ وہ گانے جو فحش گانے ہیں، وہ گانے جو انسان کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، سارے گانے حرام ہیں اور یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، بد نظریاں، بد نگاہیاں، یہ سب آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی پناہ، کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے؟ آواز آئی دنیا سے محبت کرتے تھے، فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو تیرے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ کہا وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ اللہ نے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی ہے۔ دنیا کی محبت اور فاسقوں کی پیروی کی وجہ سے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ ہاں، داڑیاں منڈانے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، شراب پینے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، اور اللہ اکبر، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔
वो मुर्दा कह रहा है हजरत ईसा अलैहि सलाम की गुजारिश पर, मेरे साथी जो औंधे मुंह पड़े हैं मर के, वो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके मुंह में आग की लगाम डाल दी गई है। तो फरमाया तू क्यों बोल रहा है? कहा मैं इनमें से नहीं था, मैं तो इनसे मिलने आया था। इन पापियों से मिलने आने की वजह से मैं भी अजाब का शिकार हो गया और मैं जहन्नम के किनारे पे लटकाया गया हूं कि मैं मुजरिमों से मिलने क्यों आया था, मैंने मुजरिमों से दोस्ती क्यों की थी, मैंने गुनहगारों से दोस्ती क्यों की थी। उस बुनियाद पर मुझे भी मार डाला गया, लेकिन मैं जहन्नम के किनारे पे लटका हुआ हूं और मुझे बोलने की इजाजत है क्योंकि मैं इनमें से नहीं लेकिन मैं इन्हीं में से हो गया हूं। तो कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं और मुझे नहीं पता कि जहन्नम के किनारे पे जो मैं लटका हुआ हूं तो मुझे निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये है उन लोगों का अंजाम जो दुनिया से मोहब्बत करते थे, जो दुनिया से प्यार करते थे। मेरे भाई अब मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए कहता हूं, खुदा के लिए दुनिया में रहो लेकिन अल्लाह के बंदो आखिरत की कुछ तैयारी कर लो। वो मैदान महशर जिसमें आग की जमीन पे खड़े होना है, वो मैदान महशर जिसमें अपने अमाल का जवाब देना है, वो मैदान महशर जिसमें अल्लाह हिसाब लेगा, वो मैदान महशर जिसमें अल्लाह हमसे पूछेगा, वो मैदान महशर अल्लाह अकबर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा। इतना मैं कहना चाहता हूं, अगर अल्लाह सिर्फ हमारी नेकियों का हिसाब ले ले तो भी हम अपनी नेकियों का हिसाब नहीं दे सकते, हम नेकियों का हिसाब नहीं दे सकते, हम जराइम का हिसाब क्या दे सकेंगे। गुफ्तगू को एंड करते हुए दो बातें पढ़ना चाहता हूं। आइए, आखिरत यानी कयामत जब आएगी तब आएगी, यकीनन आएगी, लेकिन इतना याद रखना जब हम मरते हैं, जिस दिन हमारी मौत आ गई उसी दिन हमारी कयामत आ गई, इसलिए कि मरने के बाद हम कयामत की तैयारी नहीं कर सकते। और ये भी सुन लो, सबके लिए कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर है, लेकिन जो अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो गया उसके लिए पूरा कयामत का दिन सिर्फ जोहर की 4 रकअत नमाज के बराबर है। जो अल्लाह को राजी कर लेंगे, यहां अल्लाह को राजी करना बड़ा अहम मकसद है, बल्कि हम तो आए ही हैं अल्लाह को राजी करने। लेकिन इतना भी सुन ले, बहुत दुख की बात, हम सबको राजी कर रहे हैं, रब के सिवा सबको राजी कर रहे। अगर कोई कह दे मेरे बेटे की शादी में आना वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, हम बराबर दुकान बंद करके जाते हैं दोस्तों के बेटे की शादी में, दोस्त तो नाराज ना हो जाए। उसकी नाराजगी के नाम पे दुकान बंद की, क्या कभी अल्लाह की नाराजगी के नाम पे भी दुकान बंद की? यार अगर मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा दुकान बंद के तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, बताइए ना। धोखेबाज इंसानों से दिल लगाने वालों, अपने जैसे मजबूर इंसान जो हमारे जनाजों में भी नहीं आएंगे, ऐसे मक्कार इंसानों की रजा का ख्याल करने वालों, और वफा जिसने पैदा की है उस रब का ख्याल नहीं करते, उसकी रजा का ख्याल नहीं करते। कितने नादान हैं हम। हमसे बड़ा नादान बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा अहमक कौन होगा? बेवफाओं की रजा का ख्याल है और खालिके वफा की रजा का ख्याल नहीं। बहरहाल बात समेट करके कहूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मरता है, यानी अब उसकी कयामत कायम होगी। कयामत तो जब होगी बिल्कुल होगी, यकीनन होगी, लेकिन जब इंसान मरता है तभी उसकी कयामत कायम हो जाती है। उस वक्त क्या होता है? मरते वक्त उसको सुन रहे हैं, जब इंसान मरता है तो उसके मौत के वक्त अल्लाह 5 फरिश्ते भेजता है। 5 यानी फरिश्ते तो हजारों आते हैं, लेकिन कलाम करते 5 फरिश्ते हैं। किस तरीके से? उसको सुने। काश कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजी बनते, चेहरों पे दाढ़ियां रखते, मोबाइल को गंदगी से पाक कर देते, अपनी सोच को गंदगी से पाक कर देते, अपनी फिक्र को गंदगी से पाक कर देते, अपनी निगाहों को गंदगी से पाक कर देते, अपनी समातों को गंदगी से पाक कर देते, अपने लुक्मे को हराम गंदगी से पाक कर देते, अपने दिल को गलत सोच और अफकार से पाक कर देते। निकलो इस गंदगी से। अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह को राजी करने की तरफ लग गए तो जिंदगी में वो मजा आएगा कि मजे को भी मजा आ जाएगा। जिंदगी का को अगर असल इंजॉय करना है तो आइए ना, नेकी करते हैं, नेकी के रास्ते पे चलते। कब तक गुनाह करेंगे? गुनाह में कोई फायदा नहीं है।
गुनाह में जिल्लत है, गुनाह में बेचैनी है, गुनाह में बेकरारी है, गुनाह में तबाही है, गुनाह में बर्बादी है। जहां गुनाह है वहां फना है। आओ, मरना तो सबको है। मरते वक्त तो 5 फरिश्ते क्या कहते हैं, हदीस पाक में आता है, पहला फरिश्ता जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, कब रूह हलक में अटकती है, रूह लुकमा अगर हलक में अटके तो क्या होता है, जब रूह हलक में अटकेगी तो क्या होगा, सोचिए। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब रूह इंसान के हलक तक पहुंचकर अटकती है तो पहला फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए आदम के बेटे, ए इंसान, कहां गया तेरा ताकतवर जिस्म। फरिश्ता याद दिलाते हैं, बहुत घमंड था ना अपनी ताकत पर, बड़ा नाज था। इसी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर जराइम और गुनाहों के अड्डों पर जाके तूने अल्लाह के गजब को चैलेंज किया था ना, कहां गया तेरा ताकतवर जिस्म। और फिर फरिश्ता कहता है, आज तू कितना कमजोर है, तू कितना कमजोर है आज, कहां गई तेरी ताकत, तू कितना कमजोर है। फिर वो तेरी चर चर चलने वाली जबान से बहुत बातें करता था, आज तेरी जबान कहां है, तू कितना खामोश है, आज तू बोलने की भी काबिल नहीं है। और फिर फरिश्ता कहता है, आज तेरे घर वाले, तेरे आइज़ा अकरबा, तेरे रिश्तेदार कहां है, सब ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। मरने वाला तो अकेला ही मरता है, करोड़पति मर रहा है, अरबपति मर रहा है, कुछ भी, कोई भी मर, लेकिन सोचो तो कैसी बेकसी है मरते वक्त। और उस पर फरिश्ता कह रहा है, कहां है तेरे रिश्तेदार, कोई नहीं आता भाई। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तवज्जो कीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, दूसरा फरिश्ता उसके सराहने आता है। और वो कब आता है, जिस वक्त इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है और उसको कफन पहनाया जाता है। रूह कब्ज हो गई और अब कफन पहनाया जा रहा है। सोचिए, और कीमती कीमती कपड़ों पे घमंड करने वालों, सिर्फ चंद गज कफन में लपेट कर, बगैर सिले हुए कपड़े में लपेट कर कब्र में डाले जाओगे। और वो भी अल्लाह राजी है तो ठीक है, वरना ये कपड़ा भी जितने मीटर का होगा ये जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहुत मजे लूट रहे हो ना दुनिया के, बहुत दिन नहीं लूटने हैं। मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो, मुसलमान हो तो इस्लामी फिक्र पैदा करो। हम ये नहीं कहते ना खाओ ना पियो, सब करो, अल्लाह को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस वक्त तो रूह निकलने के बाद कफन लपेटा जाता है, उस वक्त तो दूसरा फरिश्ता आके कहता है, ऐ आदम के बेटे, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल जमा किया था, ना हलाल देखा था ना हराम देखा था, यही चल रहा है सब, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। आने दो, जैसा आ रहा है आने दो, आने दो, आने दो। झूठ बोल के आता है, आने दो। सूद के जरिए आ रहा है, आने दो। जुए के जरिए आ रहा है, आने दो। मिलावटों के जरिए आ रहा है, आने दो। गरीबों का हक दबा करके आ रहा है, आने दो। सोचिए, गौर कीजिए, रिश्वतों के जरिए आ रहा है, आने दो। खूब रिश्वत ली जा रही है, खूब रिश्वत दी जा रही है, हराम में डूब चुका है इंसान। फरिश्ता रूह निकलने के बाद कफन पहनाते वक्त इंसान से कहता, ओ इंसान, तूने जिस दौलत को जमा किया था हलाल और हराम में फर्क किए बगैर, आज बता वो तेरी दौलत कहां गई। तूने ये सब काम दौलत जमा करने के लिए, आज देखो ना, दौलत जमा करने के लिए तो सब कुछ हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। और फिर वो फरिश्ता कहता है, वो मकान, वो घर जो तूने तामीर किया था बर्बादी से बचने के लिए, तन्हाई से बचने के लिए, जो तूने उन्स के लिए, सुकून के लिए मकानात तामीर किए थे, कहां है वो, कहां है, कहां है। एक बात आपसे कहूं, कितना भी कमा लो, दुनिया कितनी बेवफा है सोचो। अगर 5 करोड़ का बंगला भी है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत सीरियस है, इसको आईसीयू में डाल दो, बोलो कहां लेकर के जाते हैं, बेटे पोते नवासे, कहां, हॉस्पिटल में है।
5 करोड़ का बंगला रह गया पीछे, बीमारी हुए, बंगला छूटा, और कहां दाखिल हो रहे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में किराए के मकान में। हॉस्पिटल किराए का ही तो है। बेड का 2000 देना पड़ेगा, 5000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा, अरे कितना भी दो, लेकिन है तो किराए का। इंसान तेरी बेबसी तो देख। ओ आखिरत से दिल न लगाकर दुनिया से दिल लगाने वाले तेरी बेकसी तो देख कि तू हॉस्पिटल के पलंग पे पड़ा हुआ है। तेरे कपड़े उतार के, कीमती कपड़े उतार के तुझे हॉस्पिटल के कपड़े पहना दिए गए हैं, और तेरे घर में एक से खाना तैयार हो रहा है, डिशें तैयार हो रही है, और तुझे हॉस्पिटल की बगैर नमक की दाल रोटी दी जाए। ये है तेरी दुनिया। ये है तेरी दुनिया जिस पर तूने दीन को बेचा। ये है तेरी दुनिया जिस पे तूने आखिरत को। ये बगैर नमक की दाल रोटी तेरी दुनिया का आखिरी खाना है। ये तेरी दुनिया का आखिरी खाना है। मेरे भाई जरा सोच तो सही, कहां है, किस दुनिया से दिल लगा रहे? अरे आखिरत की तैयारी करो। आखिरत जैसी कोई चीज है ही नहीं। कुरान कहता है बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि दुनिया से बेहतर आखिरत है। दुनिया खत्म होनी है, आखिरत बाकी रहने वाली है। हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा फल फ्रूट की दुकान पे खड़े रहकर गौर से फलों को देख रहे थे। गौर से फलों को देख रहे थे। किसी ने कहा, ए मारूफ, क्या तुम्हें फल खाने की हाजत है? कहा, हाजत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं ये फल कौन खरीदेगा। नाफरमान लोग इसको खरीद के ले जाएंगे, फर्मा बरदार भी ले जाएंगे। मैं देख के खुश हो रहा हूं। जब दुनिया में अल्लाह नाफरमानों को इतना लजीज खिला रहा है, तो जन्नत में फर्मा बरदारों को कैसा लजीज खिलाएगा। गौर तो फरमाए, जब नाफरमानों को इतनी अच्छी ग़िज़ाएं मिल रही है। और याद रखना, फल जन्नत के दुनिया के फलों की तरह नहीं है। उनकी लज्जत, दुनिया के आम की एक ही लज्जत हो। एक किस्म का आम है हाफूस, उसकी एक ही लज्जत हो। एक किस्म का आम है लंगड़ा, उसकी एक ही लज्जत होगी। इसी तरह और भी आमों की किस्में। लेकिन ये जन्नत के आमों की खुसूसियत है, जितनी चुस्कियां बदलती रहेगी उसकी लज्जतें बदलती रहेगी। जन्नत की नेमतें, जन्नत की नेमतें, जन्नत की नेमत। अगर जन्नत का जिक्र करूं तो आपको हैरत हो, लेकिन जन्नत है बहुत मुश्किल नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है। तबलीगी जमात वालों ने बहुत मुश्किल करके जन्नत पेश की, और आपके शायरों ने बहुत आसान करके जन्नत पेश की। लेकिन ना उतनी मुश्किल है जितनी जमात वाले कह रहे हैं, और ना इतनी आसान है जितना आपके शायर लोग कह रहे हैं। बल्कि हमारा दीन अहले सुन्नत व जमात एतदाल का मसलक है, जिसमें न इफरात है न तफरीत है। न उतनी मुश्किल है जो बिदतियों ने की है, न इतनी आसान है जो शायरों ने की है। फिर जन्नत है क्या? तो जन्नत ये है, मेरे इमाम कहते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। जन्नत करीब भी है, सस्ती भी है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत सिर्फ 2 कदम पर है, बहुत दूर नहीं है जन्नत। जन्नत सिर्फ 2 कदम पर है। फरमाया एक कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख दे और दूसरा कदम जन्नत पे दाखिल हो जा। इतनी सस्ती है। नफ्स की ख्वाहिश पे कदम रख दो। नफ्स कहता है फजर में सोना है, उस पे कदम रख दो, मुझे उठना है, क्योंकि मेरे नबी की आंखों की ठंडक मुझे आवाज दे रही है। नफ्स कहता है गाने सुनना है, मैंने गाने नहीं सुनना। नफ्स को कुचलना है, नबी की आवाज में लब्बैक कहना है। अजान के वक्त तो दुनिया की बातें करने को नफ्स कहता है, मैंने नहीं करना दुनिया की बातें। अजान के वक्त मैंने तो अजान का जवाब। कितनी सस्ती है जन्नत नफ्स पे, हालांकि सस्ती नहीं है। यही तो बड़ी मुश्किल है, नफ्स को कुचलना आसान नहीं। नफ्स को हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी 40 साल तक रोजे रखते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, भूखे रहे, दरख्त की पत्तियों से रोजा रखकर पानी पे इफ्तार करते रहे। फिर भी एक दिन चेक किया, नफसानी ख्वाहिश है कि चली गई, तो अपने नफ्स को देखा कि नफ्स तो है भाई, और वो भी बिच्छू की शक्ल में है। तो आपने कहा 40 साल तक तुझे मार रहा हूं, तू अभी तक मरा नहीं। कहा बायजीद मैं तो हूं अभी, और उस वक्त तक रहूंगा जब तक तेरी मैं बाकी रहे। जब लोग तेरे हाथ चूमते तो तू सोचता है ना कि मैं कुछ हूं,
اس لیے میں باقی ہوں. جب تک تیری میں باقی تب تک میں باقی ہوں. جس دن تو میں ختم کرے گا اس دن پھر میں ختم ہو جاؤں گا. پھر اب میں تجھے ختم کرتا ہوں. اب تک بایزید عزت بچاتا پھرتا تھا, اب بایزید عزت لٹانے آ گیا, کہا کہ میں ختم ہو جائے. جمعۃ الوداع کے آخری دن, یعنی رمضان کے آخری دن کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس دن ایسا کام بتاؤں گا نہیں کیا کیا, لیکن ایسا کام کیا بازار میں چلتے چلتے کہ پورا بستان مارنے پیٹنے لگ گیا. خوب مارا. اب تک تو اس کو ولی سمجھتے تھے, یہ ولی نہیں, یہ روزہ بھی نہیں رکھتا, یہ روزہ بھی نہیں رکھتا. ہمارا پیٹا. یاد رکھنا کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا اس کے چکر میں نہ پڑا کر.